So our next topic uh, is arch dam and buttress dam. In the last topic, we have studied about the gravity and earthen dams. So what is a arch dam? We have talked about it in the uh, regular classes in the class. So what is an arch dam? It is just a curved beam, the ends of which are restrained, and the way in which the loads are resisted is termed as arch action. Okay, so this resists the load by arch action. It may be defined as a solid wall curved in plan standing across the entire width of the river valley in a single span. ठीक है, मतलब ये कर्व्ड शेप में होता है और अक्रॉस द वैली सॉलिड वॉल एक कर्व्ड शेप में अक्रॉस द वैली होगी रिवर वैली. ठीक है, then it will be arch dam. This dam body is usually made of cement concrete. Obvious सी बात है. All the rubble and stone masonry has also been used in the past. This wall will structurally behave partly as a cantilever retaining wall, ठीक है, standing up from its base, and partly the load will be transferred to the ends of the arch spanned by the horizontal arch action. ठीक है, तो पार्टली कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के जैसे काम करेगा और पार्टली जो जो इसके लोड है वो किसकी मदद से, आर्च एक्शन की, हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन से इसके जो साइड्स होंगे जहाँ पे इसके अब्यूटमेंट्स होंगे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन से ये लोड को ट्रांसफर करेगा. The arch load will thus be transferred to the side walls of the canyon, which must be strong, stable, and rocky. This is a diagram for the arch dam. देख रहे हो यहाँ पे, ये आ गया आपका वाटर, और देख रहे हो कितना पतला सा ये बना हुआ है डैम का सेक्शन. ग्रेविटी डैम में बड़ा मोटा सा सेक्शन होता है, और ये वैली है, तो वैली का एक साइड यहाँ पे दिख रहा है अब्यूटमेंट. कहाँ पे, इधर पे कॉर्नर में आपका अब्यूटमेंट आ रहा है. The distribution of part of the load to the sidewalls of the canyon reduces the load on the cantilever wall. ठीक है, मतलब कैंटिलीवर वॉल पे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है जो साइड वॉल्स के थ्रू, आर्च एक्शन के थ्रू जो वॉल पे जा रहा है, अब्यूटमेंट पे जा रहा है फोर्स, thereby reducing the thickness as compared to that in the ordinary gravity dam. अभी हमने इसकी बात की, and that is the only benefit we derive from an arch dam in comparison to a gravity dam. तो यही सबसे मेन बड़ा एडवांटेज है आर्च डैम का यूज करने का over gravity dam. Evidently, the greater is the wall curvature in plan, the greater will be the load that will be transferred to the sides of the canyon, and hence greater will be the economy of the dam section. Obvious ही बात है कि ग्रेटर वॉल कर्वेचर होगा तो ग्रेटर लोड ट्रांसफर करेगा साइड ऑफ द कैनियन में, और उतनी ज़्यादा इकोनॉमी मिलेगी क्योंकि उतना ज़्यादा मटेरियल बचेगा. ये एक और आप एग्जांपल देख सकते हो. और ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये जो सिल्ट आता है वाटर के साथ में, ये वही चीज़ें हैं, ये सेटल होती जाती हैं. ठीक है, तो देख रहे हो ग्रेविटी डैम में बड़ा मोटा सेक्शन बनता है और ये बड़ा काफ़ी पतला सेक्शन बना हुआ है. क्यों? क्योंकि आर्च एक्शन से इसके जो साइड्स हैं वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन मदद करता है, रिड्यूस कर देता है कैंटिलीवर वॉल के ऊपर आने वाले लोड को. द इकोनॉमी इन द डैम थिकनेस कैन बी फर्दर इंक्रीज कंसिडरेबली बाय मेकिंग द डैम बॉडी not only curved in plan but also curved in section. Okay, such a non-vertical dam is known as double curvature arch dam or a shell arch dam. ठीक है, अगर उसको सिर्फ प्लान में कर्व बनाने की जगह उसे सेक्शन भी उसका कर्व किया जाए, ठीक है, तो उस टाइप के डैम को हम लोग डबल कर्वेचर आर्च डैम या शेल आर्च डैम बोलते हैं. ये देख लो आप, ये है आपका डबल कर्वेचर आर्च डैम. देख रहे हो, ये बन गया इसका प्लान, और इसका सेक्शन भी ये हो गया कर्वेचर फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आर्च डैम. Simple arch dam which transfer a larger part of their loading by cantilever action may also be of different types since their face may be either vertical or curvilinear. So depending upon the shape, the simple arch dam can be divided into three types. First is constant radius arch dam, variable radius arch dam, और third है constant angle arch dam. Okay, constant radius arch dam is the simplest design. Okay, sorry, as well as construction, but uses a maximum concrete. Okay, रेडियस कांस्टेंट हो गया, आज सिंपल तो होगा लेकिन
थोड़ा ज़्यादा कंक्रीट इसी में लगता है। तो कांस्टेंट एंगल आर्च डैम ऑन द अदर हैंड, रेडियस कांस्टेंट रेडियस और कांस्टेंट एंगल में क्या डिफरेंस है वो लिखा है। यूजेस अबाउट 43% ऑफ द कंक्रीट यूज्ड बाय कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। ओके, मतलब कांस्टेंट एंगल आर्च डैम में 43% मतलब ही कंक्रीट यूज होगा एज कंपेयर टू द कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम। The variable radius arch dam is an intermediate choice using 58% of concrete used by constant radius arch dam. So what is constant CR arch dam? Constant radius arch dam is an arch dam, the arch center of which for the upstream phase, the downstream phase and the center line are all coincident with the axis center at all elevations. ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और सेंटर लाइन सब कोइंसिडेंट है विद द एक्सिस सेंटर, obviously axis center of the dam at all elevations. In simple terms, the upstream phase is vertical so that its radius at all elevations is constant, but thickness is proportional to the height. जितनी height उतनी thickness डैम की, ठीक है। बट ये रहता है कि सिंपल टाइप ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम जो होंगे वो अपस्ट्रीम फेस वर्टिकल रखा जाएगा ताकि जो so that its radius at all elevation is constant। ये एक आप इसका प्लान देख सकते हो और सेक्शन भी आपको दिख रहा है और प्लान भी दिख रहा है कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम का। दिस टाइप ऑफ डैम इज ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन विद इंक्रीज थिकनेस एट द क्रेस्ट। ओके, ये डैम ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है और इसकी थिकनेस क्रेस्ट पे ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली अडेप्टेड टू यू शेप्ड कैनियन वेयर कैंटिलीवर एक्शन कैरीज अ रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब यू शेप्ड कैनियन में जहाँ पे कैंटिलीवर एक्शन को ज़्यादा वाटर लोड लेना पड़ता है एट लोअर एलिवेशंस, वहाँ पे आपको कांस्टेंट रेडियस डैम बनाना है। हाउ इट इज़ हाउएवर इट इज़ लेस इकोनॉमिक एज कम्पेयर टू कांस्टेंट आर्च डैम। अभी हमने देखा रीज़न भी उसका कि 43% ही यूज़ होता है कांस्टेंट आर्च डैम में। सो नेक्स्ट इज वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, also termed as variable center arch dam. In this type of dam, both radius and center angle are not constant. Okay, it is a compromise between the constant radius and the constant angle arch dam. ये intermediate होता है दोनों का। The characteristic of this type of dam is variable radius। obvious सी बात है, अलग अलग रेडियस होगा अलग अलग sections पे। The radii gradually decrease as the depth below the crest increase, ठीक है। तो ये एक important term है इधर। The radius gradually decrease as the depth below the crest increases। Okay, so again the radius gradually decreases as the depth below the crest increases। Next important point is center angle is different for different arches। जो center angle है वो वेरी करेगा 180 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएबल रेडियस मिलेगा हर सेक्शन पे आपको। ओके, so this is a variable radius arch dam। Other things about variable radius arch dam: upstream face is generally vertical or even overhanging at the upstream side near the abutment, and that at the downstream side near the crown, ठीक है। अपस्ट्रीम फेस जनरली वर्टिकल होता है या ओवरहैंगिंग हो सकता है अपस्ट्रीम साइड पे, जहाँ मतलब अब्यूटमेंट है उस वाले उस अपस्ट्रीम साइड में अब्यूटमेंट वाले एरिया में ओवरहैंगिंग हो सकता है, एंड ऑल्सो डाउनस्ट्रीम साइड में नियर द क्राउन, ठीक है। एडवांटेज क्या है वेरिएबल रेडियस आर्च डैम के? पहला है ग्रेटर आर्च एफिशिएंसी, अबाउट 50% सेविंग इन कंक्रीट एंड यूजफुल टू मीट फाउंडेशन रिक्वायरमेंट एंड प्रिफर्ड देन कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, ठीक है। नेक्स्ट, what is constant angle arch dam? It is type of arch dam in which all the arch rings have a constant angle, ठीक है। जितनी भी आपकी आर्च की रिंग्स बनेंगी उसका एक कांस्टेंट एंगल होगा। इट इज thus an improvement on variable radius type arch dam in the
in that the central angle of the horizontal arch rings at all elevations is constant. जितनी भी एलिवेशंस हैं उन सब पे जब सेंट्रल एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्च रिंग जो है वो हमेशा अगर कांस्टेंट होगा तो ये कहलाएगा कांस्टेंट एंगल आर्च डैम. ठीक है. हाउ इट इज इकोनॉमिकल. 30 to 40% saving in concrete compared to constant radius arch dam. ठीक है. ये आपका आ गया कांस्टेंट एंगल आर्च डैम. ये इसका सेक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे. ये प्लान आ गया, ये सेक्शन आ गया. ठीक है. तो ये ऐसा बनता है. सो व्हाट आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन आर्च डैम. जैसे ग्रेविटी डैम पे जो फोर्सेस लगती हैं वही होती है यहाँ भी, लेकिन उनके इम्पोर्टेंस अलग अलग हो जाती है. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके कारण डिफ्लेक्शन और स्ट्रेसेस हो सकते हैं. रिजर्वायर का वाटर लोड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. इट इज़ द प्रिंसिपल लाइव लोड एक्टिंग ऑन द डैम. मोस्ट ऑफ द वाटर लोड इज कैरिड हॉरिजॉन्टली टू द अब्यूटमेंट बाई आर्च एक्शन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आर्च. ठीक है. द बैलेंस वाटर लोड इज ट्रांसफर टू द फाउंडेशन बाय कैंटिलीवर एक्शन. ये आप देख सकते हो एक कौन कौन से फोर्सेस किस टाइप की लग रही होंगी आर्च डैम पे. अपलिफ्ट फोर्स, प्रेशर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आर्च डैम थिन होते हैं सेक्शन में. पर अगर क्रैक हो जाए डैम की बॉडी में तो it can result in increase in downstream deflection, changes in load distribution accompanied by increase in the maximum compressive stress in the arch and cantilever elements. Next is ice pressure. Ice pressure causes heavy concentration loading on the top of arch, more precisely along the arch element at the level of ice. The internal stresses caused by ice pressure are important in arch dams. ठीक है. ये भी आप एक डायग्राम देख सकते हो आइस प्रेशर का. जहाँ पे ठंडा इलाका होगा वहाँ पे आइस प्रेशर लग सकता है. टेम्परेचर चेंजेस. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. सो व्हाट आर टेम्परेचर चेंजेस. इंटरनल stresses caused by temperature changes are important, their effect being to move the dam upstream during summer. ठीक है. मूव द डैम अपस्ट्रीम ड्यूरिंग समर. और दूसरा टू मूव द डैम डाउनस्ट्रीम ड्यूरिंग विंटर, देयर बाय ऑगमेंटिंग रिजर्वायर लोड्स. ठीक है. तो टेम्परेचर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आज डैम के ऊपर. इन स्ट्रेस एनालिसिस द लाइटर कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन that is moving the dam downstream during winter is very important as it acts in the direction in which the reservoir water load acts. तो डुअल फोर्स लगने लगता है. वाटर फोर्स तो लग ही रहा है और ये विंटर के कारण जो डाउनस्ट्रीम ड्रैग लग रहा है. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स में yielding ऑफ abutment भी है. In order that the arch action is more effective, the end of the arch shall not yield. It follows that the rock of the canyon constituting the abutment of the arch shall not yield under any force and movement developed at that section. ठीक है. abutment में टूट फूट या abutment इसका strong होना चाहिए. Slight yielding of the abutment cause internal stresses in the arch. obvious ही बात है. ठीक है. ये abutment में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये देख रहे हो यहाँ पे दोनों एंड्स पे दिख रहा है ये प्रॉब्लम. अगर रॉकी और हार्ड एब्यूटमेंट नहीं है तो हो सकता है कि एब्यूटमेंट से भी इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाए. नेक्स्ट इज बटरेस डैम. सो व्हाट आर बटरेस डैम. हमने आज डैम अभी देख लिया. नेक्स्ट इज बटरेस डैम. इन अ ग्रेविटी डैम द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय द डेड वेट required for the stability of the dam rather than by the strength of the concrete. ठीक है ना. कितना क्वांटिटी लगना है ग्रेविटी डैम में वो कहाँ से डिटरमाइन होता है. डेड वेट रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम rather than by the strength of the concrete. Like, thus in gravity dams there are lower stresses in the dam body in central part of the dam, and the high strength concrete there is not stress as it could be.
ठीक है, मतलब डैम बॉडी का सेंट्रल पार्ट ऑफ द डैम जो है वहाँ पे लोअर स्ट्रेसेस होंगे, लेकिन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज नॉट स्ट्रेस, मतलब जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो भी उतना स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है जितना वो ले सकता है, एंड हेंस लेसर एफिशिएंट यूज ऑफ स्ट्रेंथ, कंक्रीट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लेसर एफिशिएंसी मिलती है हमें कंक्रीट स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के बाद भी। ठीक है ना। सो एंड द लार्ज applied force on dam ways and hence increase dam section for stability। ठीक है, मतलब जब अगर आप कंक्रीट का जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उसको पूरा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो लेसर एफिशिएंसी मिलेगी हमें। ठीक है ना। और ज़्यादा बड़ा सेक्शन बना दे तो लार्ज अप्लाइड फोर्स भी लगेगा डैम बेस में, एंड हेंस इंक्रीज डैम सेक्शन फॉर स्टेबिलिटी। ज़्यादा बनाना पड़ेगा और ज़्यादा बनाना पड़ेगा हमें सेक्शन डैम का, तो उसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं बटरेस डैम। ठीक है, ये बटरेसेस लगे हुए हैं, दिस इज बटरेस डैम। Buttress dam envisages to reduce the total volume of concrete by constructing the material where the stresses are higher and other undesirable features of gravity dam, but has higher cement content per cubic meter of concrete than a gravity dam। ठीक है, तो क्या होता है बटरस डैम में, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को कंस्ट्रक्ट करता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को कंस्ट्रक्ट करता है द मटेरियल and by constructing the material where the stresses are higher, ठीक है, and other undesirable features of gravity dam but has higher cement content per cubic meter of concrete than a gravity dam। तो सीमेंट कंटेंट इसमें ज़्यादा यूज़ होता है instead of concrete। Buttress dam is defined as a dam consisting of a relatively thin water supporting facing or deck supported by buttresses, generally in the form of equally spaced triangular walls or counterfort walls that transmit the water load and deck weight to the foundation। अभी पीछे डायग्राम देखा था, ये आ गए इसके काउंटरफोर्ट वॉल्स। ठीक है, और ये देख रहे हो यहाँ से, ये इतना तो गैप बन गया, नहीं तो डैम ग्रेविटी डैम होता तो इतना भी फिल होता पूरा। ठीक है, तो इधर इकोनॉमी मिल जाती थोड़ी सी, लेकिन ये है कि फॉर्म वर्क इतना ज़्यादा लगाना पड़ता है इन समय की ये इकोनॉमी बचती नहीं है। एसेंशियल कंपोनेंट्स, डेक है हो गया, upstream sloping membrane or deck which supports the water load transmitted to a series of buttress or counterforts। फिर buttress आ गया, the buttress or counterforts are provided at certain intervals at right angle to the axis of the dam to support the deck and for a transference of the load to the foundation। ये आपको एक इसका सेक्शन और प्लान दिख रहा है। ठीक है, ये वाटर रुक रहा है यहाँ पे, ये बटरेसेस हैं, ये इसकी यहाँ पे इतना जो भरना था वो थिकनेस फिल होनी थी कंक्रीट से वो बच गई, इसमें सीमेंट ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो एक फाउंडेशन, ये आगे टू, ये हील अपस्ट्रीम साइड, उसमें पिचिंग विचिंग, फिर रिजर्वायर विड्थ, जो बेस विड्थ है वो देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट lateral braces, a system of cross bracing between buttresses provided to effect lateral stiffness, ठीक है, and resistance to buckling of counterforts। Next is foundation mat। Foundation provides distribution of the pressure onto the soil। तो क्या क्या है, lateral braces है, a system of cross bracing between buttresses is provided to effect lateral stiffness and resist to buckling of counterforts। ठीक है, उनके बीच में, दोनों काउंटरफोर्ट्स के बीच में एक लेटरल ब्रेस लगा दिया जाता है ताकि बकलिंग ना हो। फाउंडेशन मैट प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर ऑन टू द सॉइल। देखो ये आगे लेटरल ब्रेसेस, ये लेटरल ब्रेसेस, और ये इधर आ जाएंगे इसके फाउंडेशन मैट्स। ठीक है, और ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है डेक। नेक्स्ट एडवांटेज, थिन सेक्शन विद 1/3 to 1/2 इकोनॉमी इन कंक्रीट कंपेयर टू ग्रेविटी डैम ऑफ सिमिलर हाइट। ठीक है, नो प्रॉब्लम ऑफ अपलिफ्ट और फाउंडेशन ड्रेनेज। ओके, कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन वीक फाउंडेशंस
Next, vertical component of water is resting against upstream sloping deck add to the stability of the dam. Okay. Disadvantage, thinner section is more vulnerable due to deterioration of concrete, susceptible to damage or destruction by sabotage during war. ये तो एक रेयर ही चीज है. Saving in concrete is largely offset by more reinforcement required. More reinforcement और formwork दोनों. इस पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. ओके. एंड हायर कॉस्ट ऑफ formwork. नेक्स्ट, ये इसका एक और टाइप का बटरेस डैम. फोर्सेस क्या क्या एक्ट करती हैं जो ग्रेविटी और आर्च डैम पे होती हैं. ठीक है. बस उसमें क्या एक्सेप्शन है, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वाटर प्रेशर इज ग्रेटर. ये downward component of water pressure is greater. Uplift pressure is less due to lateral escape of the uplift pressure under the buttress. ठीक है. Ice pressure का importance नहीं है as ice tend to slide up the sloping deck. Wind pressure is important if a diagonal wind of higher velocity can reach the downstream side. And because of small mass relative to rigidity of individual units, slab and round head buttress dams are efficient in resisting